All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Abhinav. Hi, Agam. Good morning, Jehan. Good morning, Aravir. Hi, Ramji. Hi, Tanmay. All right. I hope you are all doing quite good. Just give me 1 minute. All right. So last class में मैंने आप लोगों को nodes का definition, nodes के types, nodes की counting and visualization के बारे में सिखाया था. I hope you are able to draw those diagrams. ठीक है, मैंने बोला था आप लोगों को प्लीज टेक एन अटेम्प्ट एट ड्राइंग दोज डायग्राम्स ऑफ नोट्स बिकॉज इट विल हेल्प यू रियली गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दोज नोट्स आर. ठीक है, you don't need to really replicate the same diagrams that I
had drawn in the notes. You could have drawn using some other angle, some other perspective, but it would have definitely helped you in getting a good understanding of how these nodes were. ठीक है, आज हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे and this is strictly JEE advanced stuff. Okay, Shravin, you should draw. You shouldn't take a print. You will not be able to get a good understanding unless you put that effort. All right. So I think most of the students have joined in. Let's begin today's discussion with the topic of polar or spherical coordinate system. Now, Cartesian coordinate system is something that you are already aware about. Right? Cartesian coordinate system क्या होता है? We describe the three-dimensional world around us in terms of x, y, and z coordinates. How it goes is that, let's say if I give you the value of x, okay, then for that corresponding value of x, you can narrow down from the entire three-dimensional world onto a plane which is parallel to the yz plane for the given x. ठीक है, आपका जो पॉइंट होगा वो इस प्लेन पर कहीं ना कहीं हो सकता है, because all points on this plane will correspond to the given value of x. Correct? Now let's say if I give you y as well. Okay, so for a corresponding value of y, your point will now be on a line which is parallel to the z-axis, corresponding to the given x comma y point that we had spoken about. ठीक है, x दे दिया था, y दे दिया था, तो corresponding to that x and y, all the points on this line parallel to the z-axis can be the location where your point is. Then finally, if I give you the value of z, okay, then corresponding to that value of z, you can narrow down onto a particular point on that line. That, okay, this is the point x comma y comma z that we wanted to point out, that we wanted to talk about. So Cartesian coordinate system का visual understanding समझ में आया आपको? How knowledge of x, y and z helps us to locate a particular point in three-dimensional world. हाँ, बोलो मानव. So this xy line, why can't we consider it as a plane? Because its z coordinate is not fixed, right? So it's a line, no? So यहाँ पर notice करना, जब कुछ भी information नहीं दी है, so your point can be anywhere in the three-dimensional world around this origin. Yes. Then if I'm giving you the value of x, then you can narrow down onto this plane, a plane parallel to the yz plane, because I've given you the value of x. Yes, sir. So your point can be anywhere on this plane. But now I give you the value of y. So not all points will be valid on this plane. A particular line corresponding to the given value of y, right? This one which I have drawn over here, could be the line on which your point will lie. Okay, sir. Okay. This is parallel to the z-axis. Yes, yes. And then if I give you the value of z also, then it's line per, you will figure out the particular point that is under discussion, and you will come up with the answer that, okay, this is the x comma y comma z point that we are talking about. Okay, so sir. how visualization or understanding in Cartesian coordinate system works. अब आप notice करना, similar to Cartesian coordinate system, there are other coordinate system also which can be used to describe three-dimensional world
around origin. One such is called as polar or spherical coordinate system. In polar or spherical coordinate system, you are given information of r, theta, and phi. Given all these three data sets or points of information, you can exactly locate which point or which location do we want to talk about. ठीक है? Now, अब आप notice करना what is r, what is theta, and what is phi, and how it helps us in figuring out the three-dimensional world about the origin. तो एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले r का definition समझना. r is the distance of a point from origin. So let's say if I give you r का data point, then what will you narrow down to from the entire three-dimensional world? सोचो, थोड़ा visualize करो. If I give you the value of r, what will, yes, most of you have given the correct answer. You will narrow down onto the surface of a sphere. ठीक है? Please note surface. ठीक है? Not inside, not outside, just surface of the sphere, because all the points on the surface of this sphere are going to be at a distance r from the origin. So out of the three-dimensional world, you narrowed down onto the surface of the sphere. Then if I give you theta, what is theta? यहाँ पे आप notice करना, theta is the angle between z axis and the line joining point with the origin. कैसा रहेगा थीटा? Line joining point with the origin and z axis के बीच का एंगल. So थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो. ये z एक्सिस है, ठीक है? हाँ, z एक्सिस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, तो ये डेफिनेशन में थीटा में हम लोग z एक्सिस ही लिखते हैं. अब z एक्सिस से किसी थीटा एंगल पर कौन से पॉइंट्स रहेंगे? Are you able to visualize that all the points on the surface of this cone, ठीक है, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, are you able to visualize that all the points on the surface of a cone will be at a theta angle from the z axis? ठीक है? So if I look at the two pieces of information, r दे दिया था तो हम लोग एक स्फीयर के सरफेस पे नैरो डाउन कर गए थे, और अब थीटा दे दिया है. ठीक है? सो ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोन, ठीक है, अगेन नोटिस करना, सरफेस ऑफ दिस कोन विल हैव एन एंगल थीटा विद द जेड एक्सिस. अब अगर r और थीटा दोनों को मैं देखूं, व्हाट आर द कॉमन पॉइंट, तो जहां पर ये कोन और स्फीयर इंटरसेक्ट करेगा, दैट सर्कल will be my shortlisted region. That all the points on this circle, or you can say on this ring, will be the points that are at a distance r from the origin and will subtend an angle theta on the z axis when connected to origin.
तो हम लोग 3D स्फीयर से, एज इन 3D स्पेस से r मिला तो स्फेरिकल सरफेस पे आ गए, एंड थीटा मिला तो स्फेरिकल सरफेस से वी आर एबल टू नैरो डाउन ऑन टू अ सर्कल, राइट? सो एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल विल सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ r और थीटा। हाँ, कोण नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है? अगर जो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री से ज्यादा दिया आपको, तो कोण नीचे की तरफ भी हो सकता है, दैट्स ओके। अभी मैंने सिंपल लिया है। The ring will be something which you can visualize. It will be parallel to the xy plane. It is not on the xy plane. It is parallel to the xy plane. ठीक है? All right. हाँ, theta is measured with respect to positive z axis. Now, you have been given r and theta, and you have been able to narrow down onto this circle. ठीक है? अब आपका पॉइंट जो है सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है। To figure out that, the third piece of information is given to you. ये थोड़ी ट्रिकी है, इसको ध्यान से नोटिस करना। You are given the information of phi. What is phi? Phi is the angle between x-axis and line joining projection of the point on the xy plane with origin. ठीक है, थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, एक एक करके समझ में आएगा। Phi would be angle between x-axis and line joining projection of the point on the xy plane. So अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्रोजेक्शन के बारे में सोचते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द xy प्लेन क्या होगा? So अभी मेरा पॉइंट इस ग्रीन सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूं ऑन द xy प्लेन, व्हाट डू आई मीन बाय प्रोजेक्ट? यहाँ ऊपर से मान लो, लेट्स से आई हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, कमिंग वर्टिकली डाउन, तो इसका प्रोजेक्शन xy प्लेन पर क्या बन जाएगा? It will be like again a circle, but this time on the xy plane, है ना? Same circle getting drawn on the xy plane. So यहां पर लेट्स से थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देते हैं। Oops. ये आपका स्फेरिकल सरफेस था, ये कोन था, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी यूज द सेम कलर कोड जो मैंने थोड़ी देर पहले यूज किया था। इसको ग्रीन रखते हैं एंड इसको मैं लेट्स से ब्लैक में कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रीन सर्कल था, ठीक है, सबसे पहले ग्रीन सर्कल को हमने एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो वो क्या देखा? अगेन अ सर्कल ऑन द एक्स वाई प्लेन, करेक्ट? इतना तो समझ में आ रहा है आपको? जो ग्रीन सर्कल था उसको मैंने एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब आप नोटिस करना, ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस प्रोजेक्शन के पॉइंट्स का एक्स एक्सिस से कैसे कैसे एंगल रहेंगे। इफ आई आस्क यू अबाउट दिस पॉइंट ऑन द प्रोजेक्शन, व्हाट इज इट्स एंगल विद द एक्स एक्सिस? 0 डिग्री, ठीक है। इफ आई आस्क यू अबाउट दिस पॉइंट, व्हाट इज इट्स एंगल विद द एक्स एक्सिस? 90 डिग्री, राइट? इफ आई आस्क यू अबाउट सम से पीछे का पॉइंट, ठीक है, इट विल हैव सम अदर एंगल, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल हैव सम एंगल बिटवीन से 0 एंड 90 डिग्री, है ना? सो दिस फाई, जो फाई हम लोग बोल रहे हैं, व्हाट इज दैट फाई? फाई इज द एंगल ऑफ द लाइन कनेक्टिंग प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट विद ओरिजिन, ठीक है। मान लो ये मेरा पॉइंट था आर थीटा फाई, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्शन था वो ये पॉइंट है,
this makes an angle phi with the x axis. ठीक है, so given r, ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान से सुनना, given r I will be able to draw this spherical surface. मेरा पॉइंट कहीं पर भी स्फेयर की सरफेस पे हो सकता है, ठीक है, स्फेयर की सरफेस पर. Then given theta, ठीक है, if I am given the theta value, then इस कोन की सरफेस पर कहीं पर भी मेरा पॉइंट हो सकता है, राइट. सो आर और थीटा का कॉम्बिनेशन वुड बी दिस ring, or you can say circle. All points on this circle will be at a distance r from the origin and have an angle theta. ठीक है, when the point का line connects the origin, that will have an angle theta with the z axis. अब if I project this circle, ठीक है, if I project this circle on the xy plane, then different points on it will have different angle with the x axis. ठीक है, so phi will be that information which will help me narrow down from this circle onto a point. That particular point will have an angle of phi from the x axis. Once I figure out that point, उसको मैं वापस ऐसे vertically ऊपर लेके चला जाऊंगा, and then I will comment that this is the r theta phi point that we are able to get in the polar coordinate system. ठीक है, हाँ. So definitely आपके दिमाग में डाउट आएगा that why did we do this. हमें XYZ समझ में तो आ ही रहा था, but then why this complexity? Why is it that we needed to use this kind of a coordinate system? ठीक है, this is something which you will understand that in situations when we are analyzing a system, we are analyzing its properties, and उसकी properties जो हैं, they are behaving in a spherically symmetrical manner or a cylindrical symmetry manner, then rather than doing the math in Cartesian coordinate system, doing the math in such polar coordinate systems helps visualize or helps do the calculations much better. ठीक है, जैसे फिजिक्स में आप लोग 12th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में तो आप लोग देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भर भर के पढ़ोगे. ठीक है, इन 11th क्लास अभी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रैक्टिस भी कराने लग गए होंगे, वेक्टर्स का चैप्टर वगैरह आपका कंप्लीट हो गया होगा. ठीक है, अभी आप फिर काइनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें 1 डायमेंशन मोशन, फिर 2 डायमेंशन मोशन, फिर रोटेशनल मोशन भी पढ़ोगे तो 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात आएगा. ठीक है, दैट इज व्हेन यू विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ and more about this Cartesian coordinate system. Then 12th class mein, when you are going to study some more systems, tab you might come across coordinate systems which are designed to be helpful in calculations for those systems. Spherical coordinate system is one of them. ठीक है, there will be a cylindrical coordinate system which you will also study. ठीक है, और भी होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट आपके लिए ये दो एटलीस्ट और रहेंगे which you will study in your 12th class as well. यहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों आपको समझाया जा रहा है, वो मैं आपको एक बार बताता हूं. दैट जब इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जाता है, then what was understood or what was found was that it comes out to be a quite complicated
function in terms of x, y, and z. However, when it is written in terms of polar coordinate system, ठीक है, आपस में interconvert कर सकते हो. When it is written in the polar coordinate system, it was found that it automatically, ठीक है, that was the nature of the wave function, that it automatically got simplified into two parts, one radial part and the other angular part. So there was one separate part which was dependent only and only on r, that is the distance from the nucleus, and there was a part which was only and only dependent upon the theta and the phi values. We call that as angular wave function. Such simplification wasn't observed in the Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system में जब वेव फंक्शन लिखा जाता था, ठीक है, जो कि आपको मैंने दिखाया नहीं है, आपने देखा भी नहीं है, बट जब वेव फंक्शंस लिखे जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देन ये ऐसे अलग x, अलग y, अलग z का सेग्रीगेशन नहीं शो करते हैं, ठीक है. दे आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर मच मोर कॉन्वोल्यूटेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई विल गिव यू. जैसे इफ आई राइट सम फंक्शन, ठीक है, एक्स वाई जेड एज एक्स स्क्वायर e की पावर y अपॉन z, राइट. तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा ये फंक्शन को मैं लाइक इसका x पार्ट अलग लिख सकता हूँ, y पार्ट अलग लिख सकता हूँ, z पार्ट अलग लिख सकता हूँ, ठीक है. दैट इज अ simplification which is offered by this form. But कल को अगर let's say if I write a function which is something of this nature, x raised to the power of y e की power y times z, ठीक है, upon z, and then I ask you can you segregate the x part अलग, y part अलग, z part अलग, so you will face a challenge. You will be like no, this is too complicated, it is all mixed up together, I am not able to really segregate the x, y and z parts अलग अलग, ठीक है. So this is just a hypothetical example that I am giving you, ठीक है. This is just a example to show you the fact that when wave function was written in Cartesian coordinate system, it was more complicated, but when written in the polar coordinate system or the spherical coordinate system, it turned out to be much simpler to understand. The radial part and the angular part, they automatically segregated. Radial part अलग से feature होने लगा, angular part अलग से feature होने लगा, so that we could develop दोनों का separate understanding, ठीक है. टोटल वेव फंक्शन तो r, थीटा, फाई तीनों के टर्म्स में, बट उसका रेडियल पार्ट एंड उसका एंगुलर पार्ट अलग अलग दिखता है, and we can study each of them separately, understand them in a bit more detail, ठीक है. एंड एज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस आप लोग नोटिस करोगे हम लोग रेडियल पार्ट को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं, ठीक है. आप लोगों ने, जिन लोगों ने बुकलेट में ऐसे वो ग्राफ्स देखे होंगे, ऐसे 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 करके कुछ कुछ ग्राफ्स होंगे, तो वो सब रेडियल पार्ट को एक्सप्लोर करते हुए हैं, ठीक है. एंगुलर पार्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. एंगुलर पार्ट में मैं आपको बहुत बेसिक सी छोटी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, बट रेडियल पार्ट इज समथिंग विच विल बी ऑफ की फोकस, ठीक है. So this was the reason why the electron or the orbital wave function is studied in polar coordinate system, ठीक है. Now after knowing this, ठीक है, I could have very well started off from here only, that we are going to study the electron or the orbital wave function in polar coordinate system, but rather than just stating that we are going to study in polar coordinate system, I do need each and every one of you
to be able to understand what r, theta and phi का definition is. ठीक है, even if ठीक है you weren't able to get this complete visualization of how r, theta and phi describe the three-dimensional world around us. ठीक है, even if you weren't able to follow this complete visualization, इतना बड़ा दिक्कत नहीं है. ठीक है, you should at least be able to remember what r meant, what theta meant and what phi meant. ठीक है, मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं. r is the distance of point from the origin, right? So if let's say I give you the value of r, then you will narrow down onto the sphere का surface. ठीक है, एक r radius का sphere होगा, उसकी surface पर आप narrow down करोगे. तो your point can be anywhere from three-dimensional world. It can be anywhere onto the surface of the sphere. ठीक है, if I give you the value of theta, ठीक है, r के बाद मैं आपको थीटा भी दे दूं. थीटा क्या होता है? थीटा is the angle between z axis and the line joining the point with the origin. ठीक है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत इसलिए आ रही है बिकॉज आप लोग पेन नहीं चला रहे हो. ठीक है, थोड़ा सा पेन चलाओगे तो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट मच मच बेटर. ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो कि पेन हाथ में लिए भी नहीं है. ठीक है, जो बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं उनको डेफिनेटली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है. सो थीटा कैसा दिख रहा है? थीटा इज द एंगल बिटवीन z एक्सिस and the line joining the point with the origin, right? So if I was to just look at theta in isolation, right, ये z axis है, right, इससे theta angle पर कौन से points रहेंगे? All the points on this line will be at an angle theta. ठीक है, but if I just swirl it around, ठीक है, then all the other points on this line or on the surface of this cone are also going to be at an angle theta only. ठीक है, so what will be the points that are at an angle theta from the z axis? All the points on the surface of this cone. ठीक है, they will be at an angle theta from the z axis. So r दे दिया था तो we narrowed down onto the surface of the sphere, and theta दे दिया तो we narrowed down onto the surface of this cone. And दोनों का intersection क्या होगा? दोनों का intersection would be this circle. ठीक है, so all the points on this circle will be at a distance r from the origin, and when connected to origin will subtend an angle of theta to the z axis. ठीक है, थोड़ा विजुअलाइजेशन लगेगा. Then phi, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है. phi के बारे में कैसा बताया है? That if I take the projection of this circle, जो ऊपर वाला जो पॉइंट, ऊपर वाला जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था, उसका अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूं xy प्लेन पर, ठीक है, if I take the projection of that circle on the xy plane, it will be again a circle only, and as you can see all the points on this circle will be at a different angle from the x axis. ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था ये वाले पॉइंट का एंगल 0 डिग्री है, ये वाले पॉइंट का एंगल 90 डिग्री है, राइट. इनके बीच में कोई सा भी पॉइंट आप लोगे तो उसका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हो जाएगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ठीक है, पीछे वाला पॉइंट ले लोगे, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लोगे तो इट विल बी एट एन एंगल ऑफ समथिंग बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, राइट. तो इस तरीके से आप ये पॉइंट figure out करोगे. So if I give you the value of this angle, if I give you the value of phi is that angle between the x axis and the projection and the line joining the projection of the point with origin. ठीक है, so if I give you that phi, so x axis से phi angle पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो जहां पे प्रोजेक्शन को कट करेगा, ठीक है, that will be your
पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन द XY प्लेन. सो देन यू टेक इट वर्टिकली अप, एंड जहां पर ये हमारे जो ग्रीन सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी योर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ r, थीटा एंड phi. ठीक है. नाउ इवन आफ्टर थ्राइस एक्सप्लेनिंग दिस, व्हाट इज द विजुअलाइजेशन, अगर आपको विजुअलाइजेशन अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है, देन यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम into looking at visualizations or animations, because maybe you aren't able to do it by yourself in your head. That's okay. With some more assistance you should be able to get that. Abhi ke liye I will not further spend time on this. I'll just sincerely ask you to remember what r and what theta means. ठीक है. phi का अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो it's okay. r and theta are going to be the more important ones. ठीक है. Now, given this knowledge of polar coordinate system and the understanding, जब wave function r, theta and phi के terms में लिखा जाता है तो it automatically breaks down into its radial part and angular part. Let's look at how it looks like. ठीक है. Now, अब आपके सामने जो different orbitals हैं, ठीक है, for a single electron system only, मैं ये different orbitals के wave functions लिख रहा हूं. प्लीज बेयर दिस इन माइंड. ठीक है. कान खोल के सुन लो, बार बार रिपीट नहीं करूंगा. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द वेव फंक्शंस व्हिच आई एम गोइंग टू नाउ शो टू यू. इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ these wave functions look like when written in the spherical coordinate system. What is the equation going to look like? आपको याद बिल्कुल भी नहीं करने हैं. ठीक है. सो यहां पर नोटिस करना, हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मान लो, कोई सी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मान लो, उसके अराउंड ये रिजल्ट्स समझे थे, राइट, दैट डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं करस्पॉन्डिंग टू दीज डिफरेंट ऑर्बिटल्स. ठीक है. एंड these solutions, like each solution corresponds to a wave function, and that wave function is for a particular orbital. तो यहां पर I have written in front of you different orbitals के wave functions. ठीक है. मुझे भी बिल्कुल भी याद नहीं रहता. ठीक है. अगर मैं ये छुपा दूं और आप मुझसे बोलो कि सर 3D XY ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिख के बताओ, आई विल से मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. ठीक है. बिल्कुल भी याद नहीं है मुझे. एंड क्यों याद नहीं है? क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती है और मुझे उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना है. ठीक है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज वेव फंक्शंस. यू डोंट नीड टू derive them. I have directly given you these equations so that अगर क्वेश्चन में आपके सामने ये आते हैं तो आप इनको रीड कर सको, इनको इंटरप्रेट कर सको. ठीक है. सो क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड. ठीक है. ध्यान से ऑब्जर्व करना, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे अभी. क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है. आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 2px का वेव फंक्शन लिख के बताओ क्या होगा. ऐसा नहीं पूछेंगे. रादर आपसे उल्टा पूछा जा सकता है. ठीक है. आपको वेव फंक्शन दिया जा सकता है कि ये वेव फंक्शन है, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट, ये किस ऑर्बिटल का होगा. ठीक है. दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू माइट बी आस्क्ड. ठीक है. इनफैक्ट हैज बीन आस्क्ड इन couple of previous examinations as well. तो यहां पर our objective won't be to rectify these wave functions. Rather, इन सब में एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है. ठीक है. वो पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा, वो पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा.
and that pattern is something which will help you connect back to which orbital का wave function these are. ठीक है? And while understanding this pattern, there are some important results that you will be able to also remember. ठीक है? So यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, let me zoom out a bit. These are the wave functions that I have written for at least 1 से लेकर 3D तक के ऑर्बिटल्स का. ठीक है, 1s 2s, फिर 2p के 3, 3s 3p के 3 और 3d के 5. इन सब का मैंने रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन लिखा है. ठीक है, अब इसमें जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनका मीनिंग आपको मैं बता देता हूं. ठीक है, जैसे आप कोई सा भी फॉर एग्जांपल वेव फंक्शन पिक कर लो. से लेट्स से ये 2py का वेव फंक्शन आपने पिक करा, तो इसमें आप नोटिस करोगे ये रेडियल पार्ट में 1/2√6 ये सब तो कांस्टेंट्स हैं. z क्या रिप्रेजेंट करेगा? z विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम प्लस है तो 2. a0 क्या रिप्रेजेंट करता है? a0 is a constant value 0.529 angstrom. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बोर्स रेडियस. ठीक है, यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है दैट a0 is a constant value, it represents बोर्स रेडियस. ठीक है, देन सिग्मा. ठीक है, यू माइट बी वंडरिंग व्हाट दिस सिग्मा इज. ठीक है, तो दैट सिग्मा इज एक्चुअली अ टर्म which contains r. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो ये जो सिग्मा है इट इज 2zr अपॉन n a0. ठीक है, n स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, तो जिस भी ऑर्बिटल में ये सिग्मा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 3D xy का एक्सप्रेशन है रेडियल वेव फंक्शन का, इसमें जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स z इंटू आर अपॉन 3a0. ठीक है, 3 will correspond to the n or the principal quantum number of the orbital that we are talking about. ठीक है, then theta and phi. ठीक है, ये 15/4 पाई ये सब तो कांस्टेंट है. थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं. ठीक है, व्हाट थीटा एंड फाई आर. ठीक है, सो यहां पर I have written down these wave functions. The total wave function would be what? Total wave function will be just a multiplication of these two. ठीक है, radial wave function into angular wave function will be the total wave function of that orbital. ठीक है, E क्या represent करता है? E is the exponent term ना, 2.71 something, like नॉन recurring है ये. आप लोगों ने कैलकुलस में नहीं पढ़ा ये E? ठीक है, क्या बात कर रहे हो? मतलब dy dx ऑफ e की पावर x इज e की पावर x ओनली, ये तो पढ़ा ही होगा. हाँ, e इज अ स्पेशल नंबर. ठीक है, इसका डेफिनेशन एंड ऑल ये सब आपको मैथ्स में सिखाते हैं. हाँ, मतलब ये तो आई थिंक पढ़ाया होगा, सिखाया होगा. देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस वैल्यू ऑफ e. हाँ, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ पर्टिकुलर कांस्टेंट.
नाउ कमिंग बैक, ठीक है, कमिंग बैक टू आवर फोकस ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। यहां पर आप नोटिस करना दैट ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन मैंने आपको यहां पे लिख के दिखाया है, ठीक है। अगेन यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, you don't need to do that. However, if a wave function is written in front of you, then वो किस ऑर्बिटल का होगा, that is something which we are going to learn and understand, ठीक है। सो यहाँ पे नोटिस करना, not expected from you to write the wave function of an orbital, but what can be expected from you that if given a wave function, then you are able to determine which orbital it belongs to, ठीक है। So let's explore that one by one. नोटिस करना, अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन मिलता है, देन यू कैन डिटरमाइन द n एंड द l वैल्यू ऑफ दैट ऑर्बिटल, ठीक है। अगर आपको किसी ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन मिलता है, तो उस रेडियल वेव फंक्शन से आप उस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन कर सकते हो। किस तरीके से, यहां पर आप पैटर्न अब ऑब्जर्व करना। आप नोटिस करोगे ऊपर जितने भी रेडियल फंक्शंस लिखे हुए हैं, दे आर ऑफ अ जनरल फॉर्म, उनमें एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है, फॉलोड बाय अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ आर और सिग्मा, फॉलोड बाय एन एक्सपोनेंशियल टर्म, वो जो ई की पावर वाला टर्म है उसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं, इन आर और सिग्मा, ठीक है। सो इफ यू नोटिस these different वेव फंक्शंस, तो अगर आप 3D का वेव फंक्शन देखोगे तो 3D का कैसा है, देयर इज अ कांस्टेंट, ठीक है, इनफैक्ट दिस मच इज कांस्टेंट, देन देयर इज अ पॉलिनोमियल इन आर और पॉलिनोमियल इन सिग्मा, फॉलोड बाय एन एक्सपोनेंशियल टर्म इन सिग्मा, सिग्मा बोल लो या आर बोल लो, बिकॉज ये सिग्मा के अंदर ही आर है, ठीक है। यू लुक एट एनी अदर, ऊपर फॉर एग्जांपल लेट्स से 3s का आप देख रहे हो, you have a constant term 1/9√3 z upon a naught raised to the power of 3/2, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया आपका। देन यू हैव अ पॉलिनोमियल, यहां पर ऐसे ये 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको सिग्मा या आर के टर्म्स में, फॉलोड बाय एन एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखेगा इन ऑल दीज वेव फंक्शंस। नाउ अब नोटिस करना, इन दीज वेव फंक्शंस व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है, अगर आपको n और l निकालना है ऑर्बिटल का, देन यू नीड टू फोकस ऑन द r एंड सॉरी द पॉलिनोमियल पार्ट ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन, पॉलिनोमियल पार्ट के ऊपर आप फोकस करोगे। उस पॉलिनोमियल पार्ट के बारे में आप दो चीजें डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे। पहली चीज जो आप डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे इज number of non-zero roots of the polynomial, ठीक है। जो polynomial होगा, this can be a linear equation, this can be a quadratic, this can be a cubic, ठीक है, उसके आप नॉन जीरो रूट्स कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ, उस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हो ना आप, पॉलिनोमियल सॉल्व करना तो आपको आता ही है, बेसिक, ठीक है। सो उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स
आप निकालोगे एंड दैट काउंट of number of non-zero roots will give you the number of radial nodes. And you know that radial nodes हम लोग कैसे लिखते हैं? The count of radial nodes for an orbital is n minus l minus 1. ठीक है, हमेशा रियल रूट्स ही आएंगे. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये पॉलिनोमियल के कॉम्प्लेक्स रूट आ गए तो हम लोग क्या करेंगे. Those scenarios aren't going to happen. ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका रूट हमेशा रियल वैल्यूज ही आएंगे एंड इसमें यू ओनली नीड टू फोकस ऑन द नॉन जीरो रूट्स. ठीक है, बिकॉज जीरो रूट क्या हो जाएगा? जीरो रूट मतलब न्यूक्लियस ही हो जाएगा ना. दैट इजंट कंसिडर्ड एज अ नोड. तो नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच द पॉलिनोमियल इज जीरो. अगर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो ये साई आर जीरो हो जाएगा. ठीक है, साई आर जीरो हो जाएगा मतलब दैट पोजिशन, that distance from the nucleus, that location will be a place जहां पर amplitude zero है. amplitude zero है मतलब probability of finding the electron would be zero. ठीक है, इसलिए मैं उनको radial nodes बोल रहा हूं. ठीक है, let me take one or two more examples. actual examples लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. So when you focus on that polynomial, you focus on calculating the number of non-zero roots of it, and that will give you the value of n minus l minus 1. This will be the first equation. Then second key piece of information would be to focus on the lowest power of r in the polynomial. ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल आपके सामने रहेगा, लेट मी टेक एन एग्जांपल, उसमें लोएस्ट पावर ऑफ r पे आप फोकस करोगे. ठीक है, वो r के टर्म्स में पूरा पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर नोटिस करोगे, लेट्स से दिस इज द 3s का पॉलिनोमियल. ठीक है, इतना पार्ट, दिस इज द पॉलिनोमियल टर्म, राइट. तो इफ यू फोकस ऑन दिस पॉलिनोमियल, यू हैव r स्क्वायर का टर्म. ठीक है, दिस इज r स्क्वायर का टर्म. You have r का टर्म, r raised to the power of 1 का टर्म, and you have r raised to the power of 0 का टर्म as well. ठीक है, so in this polynomial the lowest power of r will give you the value of l, and that will be your second equation. दो इक्वेशन, दो अननोन से आप n और l of the orbital डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, ये पैटर्न इसमें से इमर्ज होता है. Let me make you practice some examples. ठीक है, just give me one moment. Let me remove some answers, and then this will be something that you can easily help me or help in fact yourself to understand. Okay, just give me one moment. All right, let me take एक एक करके examples. So this is say given to you. ठीक है, ये एक रेडियल वेव फंक्शन आपको दिया जा रहा है ऑफ सम ऑर्बिटल. अब आपको पूछा जा रहा है दैट इस ऑर्बिटल का n एंड l क्या होगा. ठीक है, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द azimuthal quantum number of the orbital corresponding to this wave function.
तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे इफ आई लुक एट दिस वेव फंक्शन, ठीक है, then I realize that it has 3 parts to it. There is a constant part, ठीक है, this is the constant part. There is a polynomial part to it, and there is an exponential part. Right now I need to focus on the polynomial part, ठीक है, 6 minus 6 sigma plus sigma square, ठीक है, so ये quadratic है. Now if you solve for this quadratic, you get 2 non-zero roots, ठीक है. If you want to solve for those values also, तो आपको मिल जाएंगे. क्या रहेगा यहाँ पर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 36 माइनस 24 12 अपॉन 2, ठीक है. एक ये रहेगा और एक 6 माइनस रूट 12 अपॉन 2, ठीक है. तो ये आपका सिग्मा का वैल्यू आएगा. रियल वैल्यूज ही आएंगे आपके, कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आएंगे. बट यू हैव 2 नॉन-जीरो रूट्स. व्हाट डज दैट मीन, इससे आप लिखोगे दिस मीन्स दैट n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है. दैट 2 रेडियल नोड्स रहेंगे इसके, n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू 2 रहना चाहिए. देन यू ऑल्सो लुक एट द सेकेंड पॉइंट, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, लोएस्ट पावर ऑफ r के ऊपर आप फोकस करोगे. तो ये 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर है. सो इफ यू आर लुकिंग एट दीज टर्म्स, तो ये r स्क्वायर का टर्म है, ये r की पावर 1 का टर्म है, और ये r की पावर 0 का टर्म है, राइट. सो व्हेन यू लुक एट दिस polynomial, what do you find is that the lowest power of r here is 0. So this creates the second equation for you, that is L is equal to 0, right. So now from 1 and 2 you should be able to get the answer. What is n and what is L? You get n is 3 and L is 0, ठीक है. That means this is a 3s orbital का wave function. समझ में आए? ठीक है. इसमें पर्टिकुलरली किसी को कोई डाउट है? बिकॉज दिस विल बी क्रूशियल. यहाँ पे आई वुड लाइक टू एंटरटेन योर डाउट्स, ठीक है. बाकी किसी को नहीं है तो प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स. आई एम ओनली गोइंग टू एंटरटेन द डाउट रिलेटेड टू द सॉल्विंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हाँ बोलो आदित्य. बोलो प्रकाश. Sir, so hello. हाँ. Sir, so we can say that radial wave function can give both radial nodes and इन द मीन टाइम आई एम टेकिंग द डाउट्स. आप बाकी लोग ये वाले क्वेश्चन के लिए मुझे आंसर निकाल के दो, ठीक है. सिग्मा या फिर ये जो रो टर्म लिखा हुआ है वो सेम ही चीज है, लाइक दिस रो इज सिग्मा ओनली, ठीक है. दिस इज योर रेडियल वेव फंक्शन. यू डिटरमाइन द n एंड द l वैल्यू ऑफ इट, ठीक है. हाँ बोलो प्रकाश. Sir, so we can say that radial wave function can determine both radial nodes and angle. नहीं, and it can be radial wave function can only determine the radial nodes.
So like we can also find the angular nodes, right? उसके लिए एंगुलर वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है। बोलो तन्मय। Okay, so Yes, sir. I have doubt. हाँ हाँ बोलो। हेलो। आई हैव डाउट कि सर ये जो दो रूट्स आएंगे वो हमेशा इरेशनल होंगे या रियल भी हो सकते पहली बात तो ऑल इरेशनल वैल्यूज आर हैं? वो रियल। रैशनल भी हो सकते हैं क्या मीन्स? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके ओके सर। बोलो ऋषभ। So in the sigma wala formula, that is the polynomial r and sigma, we are taking it to be like almost the same, right? Power of sigma will be power of r यस because the 2zr formula. रिलेशनशिप बताया था ना, सिग्मा इज Yes, sir. 2zr अपॉन n इन। So all the rest are constants and only the r is what you're concerned about. यस Okay, sir. बोलो अनुश्री। so like इस बार इस क्वेश्चन में सिग्मा एक क्वाड्रेटिक पे फॉर्म पे था, so हाँ like we know that it's going to be two roots, so do we need to solve it or can we just हाँ write अभी it as जैसे अभी मतलब सॉल्व नहीं करने के लिए था, मतलब आई डिडंट आस्क यू, आई जस्ट आस्क्ड यू अबाउट द काउंट ऑफ नोड्स। ठीक है, okay. अगर मान लो क्यूबिक या 4 डिग्री पॉलिनोमियल रहा तो आई नो कि आपको उसका सॉल्विंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट नंबर ऑफ रूट्स, आप जैसे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी। Okay, sir. Yes, thank you. हाँ बोलो विनायक। सर मुझे n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू टू वाला नहीं समझा। आपको जो पॉलिनोमियल दिख रहा है उसके कितने नॉन जीरो रूट्स मिल रहे हैं? सर दो। तो n माइनस एल माइनस वन का वैल्यू 2 लिखना होगा। तो सर यहाँ पर जैसे कि तीन रूट्स आएंगे तो यहाँ पे n माइनस एल माइनस वन का वैल्यू 3 होगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ ना। हाँ सर। हाँ ठीक। सो यहाँ पर एज यू कैन सी, ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, कई स्टूडेंट्स ने गलत भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इफ आई लुक एट द वेव फंक्शन, ये इतना पार्ट कांस्टेंट हो गया और इतना पार्ट एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, एंड ये जो मैंने येलो में हाईलाइट करा है दिस इज योर पॉलिनोमियल। करेक्ट। अब आप अगर इस पॉलिनोमियल को देख रहे हो, ठीक है, यहां पर what you will need to understand is that it looks a 4th degree polynomial. ठीक है, if I ask you to look at its degree, तो ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा। ये जो रो है ये इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं मर्ज कर दूं तो दैट इज द एंटायर पॉलिनोमियल ना। ठीक है, सो कई बार ऐसे ब्रैकेट में सिग्मा बाहर निकाला होगा तो आई वुड लेट्स से रीराइट इट। ठीक है, मैं इसके लिए आपको ऐसा लिख देता हूँ, ये आपके लिए रो की पावर 4। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी डू इट इन द सेम मैनर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, 120 रो माइनस 90 रो स्क्वायर प्लस 18 रो क्यूब माइनस रो की पावर 4। ठीक है, इम्प्लाइज 4th डिग्री पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, बट एज यू कैन सी, ठीक है, द क्वेश्चन वाज ऑलरेडी हेल्पफुल। द क्वेश्चन वाज ऑलरेडी हेल्पफुल कैसे? बिकॉज यू कुड सी हेयर यहाँ पर दैट दिस 4th डिग्री polynomial has 4 roots और उसमें से 3 नॉन जीरो रहेंगे और 1 जीरो रहेगा। राइट, दिख रहा है ना, क्योंकि ये एक रो का टर्म बाहर निकाला हुआ है।
ठीक है, सो इफ आई पुट दिस इक्वल टू 0 तो एक रूट तो रो इक्वल टू 0 हो गया, और बाकी फिर ये क्यूबिक से सॉल्व करके 3 नॉन जीरो रूट्स आएंगे। मैंने आपको किस पे फोकस करने के लिए बोला हुआ है? नॉन जीरो रूट्स पर। सो नाउ यू डोंट नीड टू सॉल्व फॉर इट, ठीक है, आपको ये नहीं पूछा है कि आप बताओ कहां पर रूट्स होंगे। यू जस्ट नीड टू राइट डाउन दैट n minus l minus 1 the number of radial nodes will be equal to 3। हाँ, हमेशा रियल ही आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा इस क्यूब में से, हमेशा रियल रूट्स ही आएंगे। नाउ if you focus on this polynomial, तो जैसा मैंने आपको बताया दिस इज 120 सिग्मा और 120 रो माइनस 90 रो स्क्वायर प्लस 18 रो क्यूब माइनस रो की पावर 4, राइट। सो इफ आई आस्क यू अबाउट द पावर ऑफ r, what is going to be the least, तो आप यहाँ पे फिगर आउट करोगे, आप बोलोगे ये r की पावर 4 का टर्म है, ये r की पावर 3 का टर्म है, ये r स्क्वायर एंड ये r की पावर 1। सो इसका मतलब लोएस्ट पावर ऑफ r in this polynomial, which is what we are calling as L, is 1। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, एंड देन व्हेन यू सॉल्व these two you get n to be equal to 5 and L to be equal to 1, ठीक है। तो ये आपका 5p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा, ठीक है। 5p x का होगा, y का होगा या z का होगा, उसके लिए फिर एंगुलर वेव फंक्शन लगता है, ठीक है। रेडियल वेव से आप सिर्फ n, रेडियल वेव फंक्शन से आप सिर्फ n और l वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। आप नोटिस करोगे कोई भी p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आप देखोगे, जैसे ये 3p है तो इसका ये रेडियल पार्ट तीनों का सेम रहेगा, द डिफरेंस एक्चुअली कम्स इन द एंगुलर पार्ट, ठीक है। तो ये आपका रेडियल पार्ट का अंडरस्टैंडिंग था। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं, ठीक है। सो लेट मी नो विच ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, ठीक है, विच आई शुड से n एंड l वैल्यू, ठीक है, n वैल्यू एंड l वैल्यू क्या होगा ऑफ द ऑर्बिटल जिसका ये वेव फंक्शन है। वो आप मुझे डिटरमाइन करके बताओ। हाँ, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। प्रयुंज, राजदीप आपका गलत है, मिहिर आपका भी गलत है, हयाती गलत है, बाकी लोगों का सही आ रहा है। आर्यवीर आपका भी गलत है, सौरादीप आपका भी गलत है, बाकी लोग सब सही दे रहे हैं। हाँ, गौरव आपने भी गलत दिया है, ठीक है। चलो भी बहुत सारे आ गए आंसर्स। अगेन यू नीड टू फोकस ऑन द polynomial part. This is the polynomial part, correct? How many non-zero roots does it have? Number of non-zero roots you can see are 3, ठीक है। इनफैक्ट ये तो काफी अच्छा सा दिखने वाला पॉलिनोमियल है,
ठीक है, आप ऐसे हवा में ही निकाल सकते हो इसके रूट्स। एक तो सिग्मा इक्वल टू 1 होगा और बाकी क्वाड्रेटिक तो आपको सॉल्व करना आता ही है। तो 3 नॉन जीरो रूट्स होंगे, तो इम्प्लाइज n माइनस l माइनस 1 वुड बी इक्वल टू 3। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा, अब आप इसमें इस पॉलिनोमियल को ओपन अप करके फिगर आउट कर लो। ठीक है, यू विल हैव लाइक व्हेन यू विल ओपन इट अप, तो सिग्मा क्यूब का टर्म रहेगा, सिग्मा स्क्वायर का रहेगा, सिग्मा की पावर रहेगा, एंड आखिरी में ये -12 कांस्टेंट आएगा ना। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट देयर विल बी सर्टेन कोएफिशिएंट्स दैट विल बी हियर, बट आखिरी में ये -12 टर्म आएगा ना, which is r raised to the power of 0. तो यहां पर लोएस्ट पावर ऑफ r is equal to 0. That will be your L. That will be your second equation. तो इससे आपको समझ में आएगा that this is a 4s orbital. n का वैल्यू 4, L का वैल्यू 0, उसका वेव फंक्शन है। ठीक है, अब नोटिस करना, ठीक है, एज एन एडिशनल लर्निंग, आफ्टर being able to solve for the n and l value, ठीक है, by counting for the number of radial nodes, you can also determine where is the location where these nodes are going to be present. ठीक है, in fact we have been doing that in the above questions. ठीक है, given the radial wave functions, you can find the number as well as location of the radial nodes. Location क्या होगा? Location would be those values of sigma और r जिनके लिए ये wave function 0 हो रहा है। ठीक है, basically जो roots हैं, they are going to give you the location where the nodes are going to be present. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि लेट्स से ये 3s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, you have a constant term, you have a polynomial, you have an exponential term. अब आपको बोला जा रहा है what is the distance of, or in fact maximum distance of the radial node from the nucleus. तो अब आप कैसे फिगर आउट करोगे? By looking at this wave function. ठीक है, आई एम गिविंग यू एन अटेम्प्ट, हाँ आप ट्राई करो। नहीं क्षितिज, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ गौरव, आपने अभी करेक्ट दिया है आंसर, राइट तनीश। हाँ शौनक, आयाति, अनिर्वन, अनव, अनिर्वन ने सही दिया है, अनव आपने नहीं दिया है। नहीं लक्ष्मी, वेदांत, शशांक, विनायक करेक्ट है। बाकी बहुत सारे आंसर्स आ गए, तो अभी I'll tell the answer. The answer is C option. That is the correct one. बाकी लोग भी ट्राई करो। हाँ मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मान लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ये 3s छुपा देता और आपको डिटरमाइन करने के लिए बोलता कि कौन सा ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है ये, राइट, तो यू वुड हैव बीन एबल टू डू द सेम एक्सरसाइज जो मैंने अभी ऊपर आपको प्रैक्टिस कराई है। आप इस पॉलिनोमियल वाले पार्ट पे फोकस करते
उससे n और l वैल्यू निकालते और मुझे बता देते कि ये 3s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है. However, this question demands something extra. This question is asking कि ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि 3s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है. आप मुझे ये बताओ by looking at this wave function that nodes कहाँ पर होंगे, रेडियल नोड्स स्पेसिफिकली, रेडियल नोड्स कहाँ पर होंगे एंड जो मैक्सिमम डिस्टेंस है रेडियल नोड का वो क्या होगा. राइट, तो आप क्या करोगे, रेडियल नोड्स कहाँ पर होंगे, जहां पर ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा. करेक्ट. nodes are what? Nodes are region where the probability of finding electron is 0. and probability हमने किससे रिलेट करी थी, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड से. तो अगर स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड 0 है मतलब ये एम्पलीट्यूड जो साई रिप्रेजेंट करता है वो एम्पलीट्यूड भी 0 होना चाहिए. अब ये 0 कब होगा, ये कांस्टेंट टर्म तो 0 नहीं हो सकती, ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी 0 नहीं हो सकती. What is it that can become 0 in this entire expression? It is only the polynomial part that can be 0. ठीक है, so we start thinking about it that for psi to be 0, ठीक है, that is your radial node. आप इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालोगे तो वो आ जाते हैं सिग्मा इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3. ठीक है, यानी कि नोटिस करना, ठीक है, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ r, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना ये सिग्मा की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, 2rz अपॉन 3a0. ठीक है, ये सिग्मा था यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3. सो आई विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ r, ठीक है, जहां पर रेडियल नोड प्रेजेंट होगा. राइट, सो 3s का डायग्राम अगर आप देखोगे, ठीक है, यू रिमेंबर 3s का डायग्राम, 3s का डायग्राम कैसा होता है, इट्स अ स्फेरिकल शेप्ड ऑर्बिटल. राइट, इसमें दो जगह पर आपने लास्ट क्लास में विजुलाइज करा था रेडियल नोड होगा. तो एक ये r1 लोकेशन होगी जो आप यहां से निकालोगे 3 माइनस √3 इंटू 2 इंटू 3/2 a0/z, और एक दूसरी लाइक r2 लोकेशन होगी, ठीक है, r2 डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जहां पर ये दूसरा नोड प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको काउंट बताया था कि 3s में 2 रेडियल नोड होंगे एंड मैंने आपको विजुअलाइजेशन भी बताया था दैट वो नोड्स कैसे दिखेंगे, स्फेरिकल नोड्स जो रहेंगे, रेडियल नोड्स जो रहेंगे. अब आज मैं आपको उनका लोकेशन भी कैलकुलेट करना सिखा सकता हूँ. ठीक है, दैट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस these nodes are going to be present. ठीक है, समझ में आई, इज दिस क्लियर. हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड एनी डाउट्स, बोलो गौरव. Sir, over here in the equation psi of 3s or the wave function they've given us, have they already took s value as 1? Because usually in all the equations we saw it was like z upon a0 the whole to the power of 3/2 or something like that. इसमें If they have, then they should substitute z is equal to 1 in sigma also, right? हाँ, यहाँ पे 1/9√3, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर z/a0 लिखा होना चाहिए था. ठीक है, बट द थिंग इज हम लोग कांस्टेंट पे इतना फोकस करते नहीं है. Yes, sir. I was just asking because it was like in all the equations there was like this general होना term चाहिए था, वो in यहाँ all the पे equations. z लिखा होना चाहिए था. Okay, sir. ठीक है, बोलो मानव. So, why? So won't every, but like, can't we add 0 to this expression? So then our minimum value for sigma will come to sigma raised to 0. Right? What?
like in the above expression, हाँ, when we multiplied everything with sigma, if why, we add, why do we multiply everything with sigma? no, in the above, not this one, the previous sum, we will multiply everything with sigma, right? So that time ये वाला कह रहे हो आप? yes sir, this one. हाँ. Row, sorry, row. So can't we add 0 at the end because we're not changing anything in the overall expression, right? But then our overall row value will become based to 0. So that's 1. नहीं, मुझे समझा नहीं अभी भी. Like after multiplying this entire expression with row, we get 120 row minus 90 row squared. Correct. And that entire thing. So at the end, if we add it plus 0, we're not changing the overall value of this, right? But our overall row will come down to 0 plus 0 row. नहीं, so you don't need to do that by yourself. The expression that is written in front of you, right? ठीक है? That is the entire expression that is coming out as the radial wave function. उसका मैं polynomial part आपको अलग से extract करने के लिए बोल रहा हूँ. Okay, sir. ठीक है? Fine, sir. All right. In the meantime, I'm taking other doubts. आप लोग ये वाला question try करो. ठीक है? Based on what we have just studied ऊपर, उसी thought process पर ये वाला question भी है. ठीक है? हाँ, बाकी लोग doubts पूछते रहो. बोलो सूर्या. Sir, in case of the cubic polynomial, क्या? Could you go to the question with the cubic polynomial? नहीं, दोबारा clearly बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ पा Could रही you है. please go to the question with the cubic polynomial, sir? एक मिनट रुक जाओ, पहले तुम ये वाला क्वेश्चन बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है? जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं, you can take a screenshot and start solving this question. है ना? हाँ, अब तुम कौन सा कह रहे हो सूर्या? The cubic polynomial. ये वाला? Yes. So are we assuming that all roots will be real and distinct? Are we assuming अगर ये क्यूबिक को मैं सॉल्व करूंगा तो yes, all the roots are going to come out to be real. कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आएगा. And distinct भी आएंगे. मतलब are we assuming that, or have you solved and have you said that there are 3 non-zero roots? हाँ, distinct आएंगे, non-zero आएंगे. So we don't actually need to solve any of the equations. You don't need to solve. Just look at the degree and that's it. Yes. Okay. Not just for this sum, all the other sums. All the other sums as well. Okay, thank you, sir. बोलो अनुश्री. I don't have any doubt. Actually, my hand was raised. Okay. बोलो ऋषभ. Sir, can you explain the psi to be psi is equal to 0 part again? हाँ, वो इस क्वेश्चन में वापस एक्सप्लेन हो जाएगा ना. आपको रेडियल नोड ढूंढना है. Yes, sir. ठीक है? रेडियल नोड. What is the definition of node? Node is the region or the surface around the nucleus at which the probability of finding electron is 0. Correct. ठीक है? If I ask you specifically what is radial node? Spherical surface. Right. So it will be a spherical surface at some distance from the nucleus. Yes, sir. Where the probability of finding the electron will be equal to 0. Now, when will the because we have understood that probability was related to the square of the amplitude. So if probability is 0, then amplitude is also 0. Is also 0? Yes, sir. Correct. अब ये 0 कब होगा? ये constant part तो 0 होगा नहीं, ये exponential part भी 0 होगा नहीं, ये polynomial part ही है जो 0 होगा. हाँ, okay. Yes, sir. ठीक है? So then we equate it to 0, then we find the roots and. Correct. Okay, yeah. ठीक है? हाँ, बोलो देवांशी. Sir, in the 88th one and even in this one, if they don't specify the whether we have to find the maximum position or the minimum, so then we can't say that like the probability is 0. नहीं, the maximum minimum are
So like why are they mentioning, means what is the importance of this? No, so okay, जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी 2 रेडियल नोड्स आ रहे हैं. हाँ. Yes, so all they are asking is that give us the radial node which is further from the nucleus. Okay, so like the moment it's given radial node, the probability becomes 0, right? So this maximum and minimum, like those words, they don't matter, right? No, they are not for probability. They are just trying to segregate between nodes which is closer, which is further from the nucleus. Okay, okay sir. ठीक है, जैसे यहाँ पर इनफैक्ट आप करोगे कैलकुलेट तो 3 नोड्स आएंगे, है ना. तो when they are asking minimum and maximum position of radial nodes, basically they are asking कि जो सबसे पास वाला radial node है उसका डिस्टेंस बताओ और जो सबसे दूर वाला है उसका डिस्टेंस बताओ, बीच वाले का नहीं पूछ रहे हैं. ठीक है, हाँ बोलो जैनम. Yes, sir, I have a doubt in the wave function part. So in a wave function, so a orbital represents an entire energy level, right? So but the wave function directly represents a specific point. So how can we make a wave function for an orbital? Because with this wave function we are representing a point. सब कुछ गड़बड़ बोल रहे हो, कुछ भी मन से बोल दिया तुमने. None of the statements that you said made any sense. If you would want to reiterate your question based on what we have studied before, तो आप बोल सकते हो. Okay. सोचो दोबारा क्या बोला तुमने. Sir, I didn't understand. हाँ, वो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ बिकॉज जो स्टेटमेंट तुमने बोले हैं those are such mix and match of words that I had spoken previously that it did not make sense. So either you go back and listen to those words or in fact read the notes, because notes में भी मैंने specifically ये चीज बताई हुई है. ठीक है, how those words are to be understood. ठीक है, if I take you back, I think couple of lectures back only. ठीक है, ये पैराग्राफ आप बोलना चाह रहे थे. ठीक है, जिसको आपने पता नहीं क्या कुछ भी वर्ड्स बोल दिए. Yes sir, I am talking about this part, but in a wave function, the way you told, it will represent a point, right? And an orbital isn't a point because we can't specify the. कब बोला wave function will represent a point? Sir, because you while you explain the wave function, then with the 3 coordinates of phi and theta and I, it will come to a point only, no? अरे बाबा, वो तो मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा रहा था. या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे समझा जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे समझा जाता है. ठीक है, अब जब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा दिया आपको, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में r थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम वेव फंक्शंस लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं. ठीक है, रेडियल पार्ट अलग होता है, एंगुलर पार्ट अलग होता है. ठीक है, अब मानो ये मेरा ओरिजिन है. ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग टू अ वेव फंक्शन, लेट्स से मैं ये 2pz का वेव फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब जो भी डिफरेंट पॉइंट्स रहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड. ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, इसका r थीटा फाई कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा. यस सर. उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, r का वैल्यू डालता हूँ, थीटा का वैल्यू डालता हूँ, फाई का वैल्यू डालता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा साई. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन एट दैट पॉइंट. यस सर. ठीक है, which when squared will be proportional to the probability of finding the electron at that point. Yes sir. ठीक है, तो अब न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं
उनको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता जाऊं तो आई विल गेट द आंसर ऑफ हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द न्यूक्लियस Yes. एंड कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स, ठीक है, which come out to give a higher probability of finding the electron is going to be the orbital. अच्छा, got it sir, thank you sir. ठीक है, all right. Although इस तरीके से होता नहीं है कैलकुलेशन, वो एक अलग ही तरीका होता है, ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता दिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया? हाँ, करेक्ट, सी ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन में कैसा रहेगा, आप यहाँ पे नोटिस करोगे 3 रेडियल नोड्स आ रहे हैं, एक सिग्मा 1 पर, एक सिग्मा 2 पर, एक सिग्मा 6 पर, एंड यू करस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। तो दीज आर द 3 लोकेशंस, ठीक है, वेयर द रेडियल नोड्स आर। तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये अपन ने आज रेडियल नोड्स का पार्ट एक्सप्लोर किया है। ठीक है, मैं एंगुलर नोड्स का भी पार्ट एक्सप्लोर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, बट आई थिंक आज की क्लास का टाइम इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में आई विल टॉक अबाउट द एंगुलर पार्ट। अगर आपको एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन मिलता है तो यू कैन डिटरमाइन द एल एंड एम एल वैल्यूज। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, दिस इज इनफैक्ट मच मोर ट्रिकी एज कंपेयर टू रेडियल पार्ट। तो इसमें हम लोग बहुत एक छोटा सा पर्सपेक्टिव ही डेवलप करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, अभी के लिए इतना काफी है। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स तो आप पूछ लो। हाँ बोलो देवांशी। नहीं, आपका तो हो गया ना। So हाँ बोलो। so can you scroll up when you were explaining about the polar coordinate? हाँ, Sir, about the phi. So yeah, so here you said that it's the angle with respect to the x-axis, right? When you have this sphere, right? The sphere surface. So, but here it's in the z-axis, right? So if it is in the x-axis, then the angle will be with respect to what then? आप वापस से पढ़ो, फाई क्या है? Yeah, so I just want to confirm, is it always between the x-axis and the projection on the xy plane, like it's constant? डिफाइन ही वैसे करा है ना। Acha, okay, so you can't define it with respect to any other axis. It's like significantly only x-axis. हाँ, that is the definition. Oh, okay. So because I thought then the sphere can be in any other axis, so then you will have to change the angle of the axis. नहीं। Okay, sir. बोलो शर्विन। Yes, sir. Sir, can you scroll down a bit to that second last question? Second last question. ये वाला ना? Yes, sir. Sir, can you explain why did you equated 3 plus minus root 3 with 2r z upon? ये तो सिग्मा का वैल्यू है ना, आपको r के टर्म्स में निकालना है। ये तो आपने सिग्मा निकाल लिया 3 plus minus root 3, तो अब r निकालने के लिए आप ये सिग्मा का एक्सप्रेशन यूज करोगे ना। Oh yes, sir, they are given. Okay, sir. हाँ, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। Yeah. Sir, in the last question, they have again done the same thing. They have given that it is an hydrogen orbital and then they have not substituted the value of z. कहाँ पर? इसमें है तो z के टर्म्स में। No sir, like we should as z is known, your hydrogen atom के लिए z will be 1, right? हाइड्रोजन एटम बोला है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजेनिक एटम के लिए भी चलेगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए चलेगा। Okay sir. ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन एटम, तो फिर z का वैल्यू 1 डाल देना चाहिए था। दैट्स ओके। बोलो अनुश्री।
So in the above table which has shown the wave functions, so हाँ. in that, if like in the 1s orbitals, when you don't have an equation for sigma, like it's like in the 2p x orbital, there's no like equation to solve for sigma, then how do you नहीं, but है ना, this is it, sigma, that is it, the polynomial is. So there'll be only one root, that'll be 0. हाँ, so number of non-zero roots कितने हो गए? 0. Number of non-zero roots 0, Right? Sure. क्योंकि like a की रूट है वो भी 0 है ना? Yes, sir. And what will be the lowest power of r in this polynomial? 1. That will be 1. तो n minus l minus 1 0 हो गया और l 1 हो गया, तो ये 2p आ तो गया. समझ में आया? All right. बोलो धने. Sir, I did not understand the 88th and 89th problem. Last के दो, और मुझे वो कॉपी भी करना है. So can you explain? हाँ. So पिछले वाले क्वेश्चंस में और 88 89 में क्या अंतर था? So maximum radial distance पूछा है. ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस में तो आपको क्या हो रहा था, जस्ट वेव फंक्शन देके पूछ रहे थे कि कौन से ऑर्बिटल का हो सकता है. Yes sir. है ना? इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पूछी है, दैट क्या इन रेडियल वेव फंक्शंस को देखकर आप मुझे बता पाओगे कितने रेडियल नोड और कहां पर होंगे वो? हाँ सर. ठीक है, तो अगर ये वेव फंक्शन आपके सामने, वैसे तो आपको 3s ऑर्बिटल के बारे में मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ है, दैट कितने रेडियल नोड्स होंगे, n minus l minus 1. Yes sir. ठीक है, बट अब आप ये वेव फंक्शन देखकर भी मुझे बता सकते हो कि कितने रेडियल नोड्स होंगे, राइट? रेडियल नोड वुड बी दैट लोकेशन जहां पर प्रोबेबिलिटी 0 होगी. Okay. प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब साई स्क्वायर 0 होगा. Sir, why is that so? Because this was the relationship that we had studied in a class when we introduced quantum mechanical model. कहाँ गया वो? ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब हमने इंट्रोड्यूस करा था तब हमने ये चीज का डिस्कशन करा था ना, दैट मैक्स बॉर्न ने बताया था दैट साई स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. Okay. तो प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब साई 0 होगा, राइट? अब साई 0 होगा तो फिर इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन, इसको मैं 0 के इक्वल कर दूं तो what part of it can actually be 0? ये कौन सा? the polynomial part. So आप polynomial part को 0 के equate करके solve करोगे तो you will get the values of sigma for which psi will be 0. Yes sir, 3 plus minus root 3. हाँ, तो number of values will give you the number of radial nodes, कि इतनी जगह पर nodes आएंगे. Okay sir. और वो चल वैल्यू निकाली आपने, वो आपको देगी लोकेशन कि यहाँ पर नोड होगा. वो मैक्सिमम मिनिमम भी दे देगा. हाँ, मतलब दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ R1 और R2 जहाँ पर नोड्स होंगे. अब उसमें से एक वैल्यू छोटी है, एक वैल्यू बड़ी है. छोटी वाले को मिनिमम, बड़ी वाले को मैक्सिमम बोल दो. ओके सर. और सर नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन कर सकते हो? सेम लाइंस पर है, आप सोचो ना अभी. ओके सेम है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बोलो अंशु. सर वो xy प्लेन में फाई कैसे डिटरमाइन किया था, एक बार वो बता दो ना, बाकी सब समझ गया. देखो वो एक मिनट में समझा देता हूँ, थोड़ी देर में समझाता हूँ. इतना स्ट्रेस मत लो उसका, ठीक है? अगर r और थीटा समझ में आ गया ना तो गुड इनफ है, ठीक है? फाई जनरली आई हैव ऑब्जर्व्ड कि थोड़ा दिक्कत आती है विजुअलाइजेशन करने में, ठीक है? तो उसमें आप इतना टेंशन मत लो उस चीज का. दैट फाई का डेफिनेशन कैसा है? फाई इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, ठीक है? ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड द लाइन, व्हाट लाइन? लाइन जॉइनिंग प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन. तो ये पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर ये हो गया. उसको ओरिजिन से ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को फाई कहते हैं. अच्छा, ओके ओके सर, समझ गया. इतना सही था ना? हाँ.
Okay, sir. So हाँ बोलो so प्रज्ञा। we equate this equation, the polynomial term, to zero because the amplitude is zero at that. रेडियल नोड, करेक्ट। Yes, sir. So if we want the amplitude to be 1, we can equate it. हाँ Okay, sir. Thank you, sir. हाँ बोलो गार्गी। Can you just show once the wave function table? I want to screenshot of it. हाँ बोलो। Yes, so, हाँ so the what's the significance of the lowest power of R? So, like what I've thought was that maybe it's the multiplicity of the zero root, and that's related to the number of lobes somehow. But नहीं, it's just a pattern that has been deciphered. There are other ways also using which you can answer this. okay, so because what I thought was that the lowest power of R tells you how many of the roots are zero, and then that's related to the number of pairs of lobes that the orbital has. नहीं so और भी तरीके से आप निकाल सकते हो। It's not Like how many times the orbital intersects with the nucleus. So, नहीं not that. okay, so बोलो सिद्धार्थ। Sir, sir, we had said that the sigma was equivalent to 2RZ by N A naught. So where N represented the principal quantum number. Correct. So, sir, in the 89th question, when we found out to which orbital this wave equation or wave function was written, so in that I got N is equivalent to 4. So then this sigma should also be like that only, sir. No? That is ZR by 2A naught. ZR by actually ये 4s orbital हो जाएगा। Yes, sir. That I got. Then N is equivalent to 4. हाँ यहाँ पर this sigma should have been 2ZR upon N 4 naught. But वो Yes, इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिया है। There is something. Sir, so do we have to take that value of sigma or the one that is given in the question? नहीं आप देखो क्वेश्चन में जो लिखा है वही लो। Okay, sir. Okay. क्वेश्चन में जो लिखा है वही लो, but technically you are right saying that this should have been 2ZR upon N A naught, and N इसका 4 आता है, like when you solve for it comes out to be 4s orbital. तो वो एक तो ऐसा मिल जाएगा आपको, कुछ जगह पे क्वेश्चंस में ऐसा गड़बड़ दिखेगा, ठीक है, बट आप जो दिया है क्वेश्चन में ना वही लेना, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्टली बुकलेट से उठाया है क्वेश्चन। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, बोलो मानव। So I had a doubt which is not about anything you taught today. So what is wave mechanical model of the atom? Like, is it de Broglie's or some other model? That is what we are studying. The quantum mechanical model or wave mechanical model, they are the same thing. Oh, okay, sir. And so I had a doubt in a question which you had done earlier. It was like what the options mean with sigma and superscript L equals something and underscript L equals something. What does that mean? Konsa? Not done today, sir. In the booklet, I'd seen one question which had something options written in this form. Can I send you a picture? मतलब question number बोलो ना। Booklet question number 69. FBO में? हाँ, FBO में। 69th वो सिग्मा वाला है क्या? सिग्मा? Yes, sir. तो सिग्मा आपने मैथ्स में पढ़ा है? सिग्मा का इंटरप्रिटेशन लाइक इट इज एडिशन, समेशन, राइट? हाँ, समेशन। हाँ, तो उसमें बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है दैट हाउ मेनी आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स आर देयर गोइंग टू बी इन एन ऑर्बिट। यस सर। राइट, तो अब आप सोचोगे कि ऑर्बिट के अंदर L 2L+1 सब शेल होते हैं,
हाँ सर, और हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनफैक्ट 2l+1 ऑर्बिटल्स होते हैं. यस सर. ठीक है, इनफैक्ट उसमें थोड़ा मल्टीपल थॉट्स जाते हैं. सो यू हैव शेल. ठीक है, ओके. एक शेल हैज 0 to n-1 subshell, Yes sir. and each subshell has 2l+1 orbitals. Yes sir. Each orbital has 2 electrons. Yes sir. Right, so 2 times 2l+1 will be the number of electrons in each subshell. Yes sir. And how many such subshells would be there? From 0 to n-1. You put on the values of L. Okay sir. Fine. ठीक है, तो उस तरीके से वो लाइक रीड करना है. Okay sir. Thank you sir. Sure. All right. Any other question? हाँ बोलो धनय. सर वो पहले का हैंड रेज था, सॉरी, आई पुट इट डाउन. ठीक है, देन आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं. फिर मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा. देन इसके आगे फिर एंगुलर पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे. ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस.